Hey everyone, welcome back to my channel. And the today topic I'm going to start, that is the switch case. I have completed all the questions and all the topic related to the if else statement and yesterday if else statement as well. The today the topic which I'm going to start about the case control structure. Let's see the definition first, then we will move into the practical. So in the case control structure, we use switch case, and switch case provide different option based on one condition. What is the difference basically in if else and switch case statement is, I will give you one example. Suppose I have three books, English, math and mathematics, English, and any book you can take like science. Okay. So you have to jump into the science book that is on second condition. So in if else condition, you have to check first condition, the book is available science or not, but first is English. So it will now check after the condition will not be met, so it will move to the next condition. So it will check all the condition until it will not find out the science book. But in switch case, it is not like that. Directly you have given the instruction, you have to given the expression or instruction, and it will check like, okay, second number book is science book, so directly you will give as a choice second, so directly it will jump into that switch case second condition, that will be science. So this is the difference. It will save your time. So both the statement can be used, but most of the time we use if else only. But switch case we use whenever we have to give the choice. Suppose I need to write a program. If I will press 1, it will print addition. If I will press 2, it will print minus, like this. Okay. So what it will do? It will directly jump into the. It will directly jump into that particular condition if you will allow to write the plus sign. So directly if the when we comes according to the choice, so you have to use the switch case, but the condition where you have to check the value, so most of the time we use the if else statement. So that is the difference. So I will move into the next slide. So that definition which we have written here. The first condition is evaluated and based upon the result of the condition the appropriate block of statement is executed. मतलब अगर आपने स्विच केस में जो एक्सप्रेशन दिया है वो उसको मिल जाता है तो डायरेक्टली वो उस केस पे जंप करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट पे वो जाएगा और डायरेक्टली डिफॉल्ट पे जंप करेगा. इन बिटवीन वी यूज द ब्रेक. अगर आप किसी केस के अंदर ब्रेक यूज नहीं करते हैं तो वो डायरेक्टली दूसरे केस पे चला जाता है. मतलब अगर आपने दो कंडीशन लिखी है, पहली कंडीशन में 1 प्रिंट हुआ है, दूसरी में 2, तो आपकी जो कंडीशन है आपने स्विच केस में चॉइस 1 दिया है और वो 1 केस पे जाएगा, उसका आउटपुट को प्रिंट करेगा, लेकिन नीचे ब्रेक नहीं दिया है तो वो ब्रेक नहीं होगा, लास्ट में सेकंड वाले को भी प्रिंट कर देगा, और सेकंड में ब्रेक नहीं होगा तो थर्ड वाले को भी प्रिंट कर देगा. तो टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर केस वी यूज द ब्रेक स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी इन अ practical example. So no need to check here, this is the word file is messy, so that's why it is looking like this. I have clicked here, I am going to create new file, and here I have written the name switch underscore case. This is my file name, and I am trying to make a simple calculator using C language using switch case. Okay, so first you guys know very well why we use the hash include stdio.h. This is the extended file, and printf and scanf function comes under this file. Then we will be using the conio.h, that this is the console input output header file, and you will start your main method void main, and here I am going to write that this use the expression, so that will be the choice based on the character we have to use. So suppose मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नेम ऑपरेशन, आप कुछ भी दे सकते हैं. मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर में, और वेरिएबल में मैंने इनपुट नेम दिया है num1 एंड num2. आई एम छोटा सा मैं एक कैलकुलेटर बना रही हूँ प्लस साइनस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का. आप प्रिंट एफ लिखेंगे, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है, सपोज इस तरीके से थोड़ा दिखेगा अच्छे से, तो मैंने ये चीज लिख दिया है, एंटर एन ऑपरेटर. कोई भी एक आप ऑपरेटर एंटर कीजिए. वो ऑपरेटर आपका क्या क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एंड डिवाइड हो सकता है. ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कीजिए. मैंने इसको डबल क्लोज को बंद कर दिया है, बाहर आ जाइए. स्कैनफ यूज कीजिए स्कैन कराने के लिए. अभी ऑपरेशन मेरा किस में आएगा, कैरेक्टर में, तो आप क्या यूज करेंगे, सी. लेकिन अगर ये स्ट्रिंग होता और आपने कोई लिमिट दी होती
नेम जैसे मेरे 3 कैरेक्टर का 5 कैरेक्टर का, तो उसके लिए आपको एरे साइन करना पड़ता है, तो परसेंटेज एस यूज करते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है, यू कैन चेक माई अनदर वीडियो जहाँ पे मैंने आपके डेटा टाइप्स की बात करी है। Okay, so here I'm going to write one more printf, and in this printf you are going to write enter operators, enter one operator या सेकंड ऑपरेटर, क्योंकि दो ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, जो वेरिएबल जिनकी मैंने कहा 2+2, तो 2 इज अ ऑपरेटर, प्लस इज अ 2, सॉरी 2 इज अ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इज अ प्लस। सो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 ऑपरेंड्स आपको करने हैं, सॉरी ऑपरेंड्स, मैंने इसका नाम लिखा है ऑपरेंड्स, ये स्पेलिंग सही है, ओके यू कैन चेक बाय योरसेल्फ एज वेल। सो मैंने यहाँ पे पहले स्कैन ऑफ किया है, स्कैन ऑफ में मैंने दोनों नंबर को हम स्कैन करेंगे, एक एक करके करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एम्परसेंट साइन यूज करते मैंडेटरी है आपका स्कैन ऑफ में। दूसरा मैंने वन ऑपरेंड एंड यहाँ पे अभी आपने पहला ऑपरेंड असाइन कराया है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर सेकंड ऑपरेंड का मतलब समझ रहे ना, वैल्यू जो आप देने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के बाद, सो सी केयरफुली, एंड ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके यू विल गेट इन योर सेशनल एग्जाम समटाइम्स एज वेल। सो अभी मैंने 2 नंबर लगा दिए हैं, मेरा जो ऑपरेशन है वो मैंने लिखा है, ये मेरा चॉइस है। आप एक काम करिए, ऑपरेशन की जगह चॉइस भी लिख सकते हैं आप, है ना, चॉइस ज्यादा बेटर रहेगा। तो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने चॉइस दे दिया, कंफ्यूज नहीं होंगे, एंटर एनी एन ऑपरेटर, मतलब योर चॉइस ऑपरेटर में यहाँ पे एंटर योर चॉइस ऑपरेटर, सो दैट विल बी गुड एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेरिएबल में, क्या आप एक्सप्रेशन कौन सा यूज करने वाले, चॉइस, मतलब क्या चॉइस आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आप इसमें देने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कर्सर लिखा, और ये केस, ये एक सिंटैक्स होता है, आपको केस इसी तरीके से लिखना पड़ता है। तो मेरा करेक्टर है, मैंने प्लस साइन यूज करा है, आप इस तरीके से आप यूज करिए, जब केस में ये स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि कैरेक्टर आप यूज करें, 1 कैरेक्टर आप यूज कर रहे हैं, तो ये इसका सिंटेक्स आपको रिमेम्बर रखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्या करने वाला है आपका ये, एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे ना, मतलब ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, रिजल्ट, रिजल्ट नेम से ले लेते हैं, प्लस माइनस में ज्यादा वेरिएबल यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे ये रिजल्ट लिया है एक वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने num1 प्लस num2 कराया है। अगर आप ये प्लस साइन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ एंड एडिशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कोमा रिजल्ट। अब आप इससे पहले ये भी कर सकते हैं, जो आप नंबर इनपुट करा रहे हैं ना, वो आपको डिस्प्ले भी कराना है, तो आपको अच्छा रहेगा थोड़ा सा, आप ऐसे करेंगे तो प्रिंट एफ टू इनपुट ऑपरेंड्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ओके परसेंटेज डी, इसको बंद कर दीजिए। पेंट लिख देते हैं इस पे, ये इट विल बी गुड, इट विल लुक गुड एक्चुअली। यहाँ पे आप प्लस साइन का यूज कर लीजिए, and the value which is b comma num1 and num2, okay so this will be the result। यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं क्या होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे जाके अपने इसको केस को बंद कर दीजिए। ओके तो ये मेरा यहाँ पे बंद हो गया, मेरा यहाँ पे दूसरा केस लिखते हैं।
बैक स्लैश का यूज़ कीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ भी यूज़ कीजिए। ये मैंने बताया आपको बैक स्लैश और बैक स्लैश टी के बारे में। ओके देन ब्रेक एंड द लास्ट, अगर कोई भी केस जो आप एंटर कर रहे हैं उनमें से मेट नहीं करता है आपका वैल्यू, तो उस केस में आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन में मैसेज दे दिया है रॉन्ग चॉइस, कि जो आप चॉइस डाल रहे हैं वो रॉन्ग है, तो जो भी आप वहाँ पे एंटर करेंगे वैल्यू उसमें ये मैप नहीं करेगा, तो आपका ये प्रिंट होगा। एंड ब्रेक इज मैंडेटरी, अगर आप लास्ट में यूज नहीं करेंगे तो चलेगा, बट फॉर गुड प्रैक्टिस आपको देना चाहिए थोड़ा सा। ये स्विच केस का हो गया, और ये आपका मेन मेथड का ब्लॉक हो गया, ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल F9 रन कराएंगे। ओके, एंटर योर चॉइस ऑपरेटर, सपोज मैंने एंटर करा प्लस, अभी आपने एंटर कर दिया, एंटर वन ऑपरेंड, ओके 12 एंटर किया। एंटर सेकंड ऑपरेटर, ओके मैंने 10 एंटर कर दिया, तो मैंने प्लस साइन यूज करा है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट अगर आप चेक करेंगे क्या प्रिंट होने वाला है, एडिशन पे मेरा यहाँ पे प्रिंट होने वाला है रिजल्ट। वो प्रिंट हो चुका है, लेकिन स्क्रीन आपकी होल्ड नहीं हुई है। एंड यू नो आपको क्या यूज करना है उसके लिए, गेट सी एच कोनी ऑलरेडी हमने लगाया है ऊपर, हम चेक करेंगे और ये आपका स्क्रीन को होल्ड करेगा। यू विल सी द लास्ट आउटपुट। बिफोर दैट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक कॉलोन वाला प्रोवाइड कराना चाह रही हूँ, सो ये थोड़ा अच्छा लगेगा एक्चुअली। और ये स्लैश हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये स्लैश हम ऊपर वाली लाइन में नहीं लगाते हैं, चलेगा। ओके, सो अभी हम कंट्रोल F9 कराते हैं। यू कैन सी द आउटपुट, ऊपर आउटपुट आया है आपका। ओके, लेकिन हम इसको फिर से रन कराते हैं। मैंने प्लस यूज करा है, एंटर वन ऑपरेंड मैंने एंटर किया है 10, एंटर सेकंड ऑपरेंड मैंने एंटर किया है 2, और 2 इनपुट ऑपरेंड इज इक्वल्स टू 10 एंड 2 एडिशन इज इक्वल्स टू 12। ओके दैट्स ग्रेट। हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है इधर लिखा हुआ है ना। अभी हम फिर से रन कराते हैं, कंट्रोल F9, ऑल स्क्रीन इज क्लीन, मैंने माइनस साइन यूज किया है। वन ऑपरेंड मैंने 12 एंटर किया है, सेकंड ऑपरेंड इज 3, तो आउटपुट विल बी 9। दैट्स ग्रेट। अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट फॉर मल्टीप्लिकेशन। I have given this sign, I'm using this 12 multiply 2, output will be 24. Great. Again I am going to execute it. Okay, and now I'm using divide. This is my divide sign I'm going to use here. This is modulus, and again I'm using the divide one sign actually. कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने एंटर किया ऑपरेंड 12 and 2, the output divide is equals to 6. Okay, that's great. ये एक लाइन में क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे हमने बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया है, तो ये आपका बैक स्लैश एन आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल F9 एट अगेन। ओके, आई हैव गिवन नंबर 1, तो ये केस ही नहीं है। एंटर वन ऑपरेंड, ओके 2 ऑपरेंड, ओके। सो आपके चॉइस की रॉन्ग चॉइस, बिकॉज डिफॉल्ट में ये आपके ऊपर कराया है ये वैल्यू, तो ये दोनों रिजल्ट मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों रिजल्ट केस के अंदर ही हो, तो फिर बाहर से वो चॉइस ही कराएगा, और ये दो वैल्यू आपको इनपुट नहीं कराएगा। तो मुझे बार बार इनपुट नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला वैल्यू डाल दिया। ओके, सो दिस इज द कोड फॉर सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। आई होप आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है। तो आप चेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो इसको बाहर निकलने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एक्स, यस
You will save this code. Okay, and we came out from this screen, and the next topic we are going to move in, that is the loop control and repetition statement. So loop control, basically what is the loop control? While loop, do while loop, and for loop. We are having three kinds of loop in C language, and this is very 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 important. If you are using any other programming language, you have to know the concept about the loop concept. Okay, so loops allow a set of instruction to be performed until a certain condition is reached, and there are three types of loop in C language. I'm going to write in note as well. Okay, here I'm going to write, there are three types of loop. One is while loop. We used to call this entry control loop as well. Okay, and the second is do while loop. We used to call it exit control loop. And third is for loop. This is simple for loop. Okay, so these are the three kind of loop we are having in C language, and the syntax we are going to write for while loop. So first you have to write the initialization. इनिशियल वैल्यू भी आप इसको लिख सकते हैं कि वैल्यू लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू बोलते हैं. ओके, देन आप कोई भी कंडीशन लिखने वाले हैं तो वाइल के अंदर वो कंडीशन आ जाएगा. देन कोई भी स्टेटमेंट समथिंग समथिंग यू आर राइटिंग सम, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कोड में रहेगा आपका वो आप यहाँ पे देने वाले हैं. माइनस माइनस, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस साइन. एंड दिस इज क्लोज्ड. दिस इज द syntax of while loop, right? The second is do while loop. do while loop में क्या होता है, इसको हम exit control loop क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है. मतलब अगर आपको किसी में कहता हो कि आपको एंट्री दे दिया है, लेकिन आप जब आउटसाइड मॉल में जाते वक्त आपको चेक इन नहीं हुआ है, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो चेक इन मैंडेटरी है, तो ये आपका डू वाइल है. लेकिन जाते हुए भी चेकिंग हुआ है, आते वक्त भी, सो दैट इज वाइल लूप. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये तो सब में इसी में सेम ही रहेगा. सबसे पहले इनिशियल वैल्यू अगर आप नहीं देंगे तो वो लूप इनफिनाइट तक चला जाता है, जो कि आपको एग्जीक्यूट होता रहेगा, करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे ये आपका इनिशियल वैल्यू आता है. जैसे लूप को 1 से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है, और डू आता है स्टार्टिंग में, बाकी सेम रहता है. आपका इंक्रीमेंट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आपको डिक्रीज कराना है तो डिक्रीमेंट आ जाएगा, और कंडीशन आपके यहाँ पे रहेगा. और दूसरी बात, ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है. आपको इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है. लास्ट में कंडीशन दे रहे हैं तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा. इफ यू विल नॉट डू दिस, आपको एरर आ जाएगा सी लैंग्वेज में. फॉर लूप, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लूप, माय फेवरेट लूप, बिकॉज ये बहुत इजी है. और शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा. जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी लगता था कि वाइल लूप में प्रोग्राम अच्छे से लिखा जाता है, बट नथिंग लाइक दैट. आप फॉर लूप यहाँ पे लिखने वाले हैं. यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी आप यहीं पे लिखते हैं, और कंडीशन भी आप यहीं पे लिखते हैं, और इंक्रीमेंट वैल्यू करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, ये भी आप यहीं पे लिखते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ जाता है. कुछ भी यहाँ पे ना इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, और आप फॉर लूप को ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सेमीकोलन लगा के छोड़ दीजिए, कंडीशन मैंडेटरी है. ओके, और ये भी सेमीकोलन लगा के छोड़ दीजिए आप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी, और यहाँ पे स्टेटमेंट है. और बाकी चीज ना आप इसमें बाकी लूप की तरह डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट देयर इज नो यूज फॉर दिस, बट यू कैन डू इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको इनसाइड में ही देना है, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं. आई मीन लाइक द वे यू आर डूइंग इन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप, सो द सेम वे यू कैन अप्लाई हियर इन फॉर लूप एज वेल. बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस. यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं देना है आपको, ये माय बैड. सो ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस है, बट यू कैन यूज दिस वन एज वेल. So if you want to fill the copy and you want to write your answer little big, so you can give both the example of that. Okay, so this is the looping concept, and now I'm going to write the program for this. So how you will write the program? Okay, so here I'm going to create a one file, and the name is loop1. Suppose this is my file name, you can give any file name. Now I'm going to write code. Again,
you have to write hash include stdio.h. Now hash include conio.h. You already know why I'm using this file. Good. Void main. Here I'm using one value, integer input 1. Okay. और सिंपल वे में आई और जे लेंगे. I input int I. Now I'm write the example of while of first. So हमने क्या लिखा, I is equals to 1 मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और मैंने कंडीशन में लिखा सॉरी कंडीशन में यहाँ पे लिखा I लेस देन 10 एंड इसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराया. इंटीजर है, यू ऑलरेडी नो प्रिंट एफ हम करते हैं तो एम्परसेंट का यूज नहीं कर सकते हैं हम, एंड ये स्कैन एफ में यूज करते हैं. हम सिंपल इस तरीके से यूज करेंगे और यहाँ पे हम किसको प्रिंट करा देंगे, आई को. ओके. नाउ मुझे चाहता है कि ये जो वैल्यू है वो एक एक प्लस होता चला जाए. आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दिस. बट व्हाई आई हैव यूज्ड conio.h to add these file. Correct, you are right. So get ch get character CLRSCAR, that is for clear screen. Right. Now I equals to 1, I less than 10. It will execute until it will not find the value equal to 10 or greater than 10. So that means the loop will print 1 to 9. What it will print? 1 to 9. Okay. I equals to 1. I less than 10 means condition is true. Okay. First time it will print 1 because I is equals to 1. Now after printing 1, inside this loop I have written I is equals to I plus 1 means I value is 1. Now what is the I value? 2. 1 plus 1 is equals to 2. So now it will check 2 less than 10. Yes. So it will print 2. एंड अगेन द वैल्यू I इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू, नाउ I की वैल्यू कितनी है, 2 है. 2 प्लस 1 अभी कितना हो गया, 3. तो अगेन बाहर आने के बाद में चेक करेगा 3 लेस देन 10. यस, 3 प्रिंट करेगा. अभी 3 प्लस 1 कर देगा क्योंकि I आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और होकर वो I में स्टोर हो रहा है. ओके. सो ये लूप आपका जब तक चलेगा जब तक की वैल्यू 10 से छोटी रहे. 10 से छोटी रहेगी वैल्यू 9 और 10 आते ही बराबर हो जाएगी. मैंने बराबर यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए लेस देन तक ही चलेगा. ओके, लेट्स print and execute this code. Control F9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है. थोड़ा और अच्छे से प्रिंट कराते हैं. यहाँ पे हमने यूज कर लिया \n. ओके. नाउ कंट्रोल F9 आप यूज करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is printing until 9. Okay. Now in the next example I will not take this value here. I am going to write it from user input. Okay. So I have written like this: enter any initial value. Okay. And it will ask you to initial any value. Okay. scanf. आपने परसेंटेज डी का यूज करा. इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, आई में है तो एम्परसेंट स्कैन में यूज होता है. ओके. अभी हम इसको रन कराते हैं. कंट्रोल F9. Enter any initial value. Okay, I have entered 5. So loop will be executing 5 6 7 8 9. Why? Because the condition will start from the 5. Now I want to do something more exciting here. वो कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रिंट और अच्छे से करा दीजिए. मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो एंटर कर दिया है. करेक्ट. अभी मैंने एक और प्रिंट एफ लिखा है. यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं यहाँ तक और \n दे देते हैं जो कि अच्छा लगेगा देखने में मैसेज. यहाँ पे हमने लिखा एंटर एनी एंड वैल्यू वेर यू वांट टू एंड योर रिसर्च और योर प्रिंटिंग. ओके. एंड स्कैनर. अभी आपको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने वैल्यू का वेरिएबल का नेम ही एंड दे दिया और इसका नेम मैंने स्टार्ट दे दिया. ठीक है. आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा. एंड प्रिंट कराएंगे तो हर बार ये स्टार्ट ही करेंगे और ये स्टार्ट में आपका क्या होता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा. और स्टोर भी हमने किस में करा है, स्टार्ट में करा है. करेक्ट. कंट्रोल S.
अभी स्कैनएफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज डी। आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो आईजी का कॉन्सेप्ट मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। एंड सिंबल, ओके, control S, control F9. Oh my god, what is that error? Oh, I have replaced this as start, and that was written I, that's what was giving error. Enter any initial value. Okay, I have written 12. 12 to 5. Okay, I'm going to write 1 to 0. Means the value will be start from 12 and it will print 1 to 0. Oh my god, बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी ना, अभी हम इसको 20 कर देते हैं. So 12 to 19 प्रिंट हो गया है. Okay, again I'm going to write control F9. Oh, 1 start value, last value 10. 1 to 9 because इक्वल नहीं है. इस बार हम छोटा सा एक टेबल प्रिंट कराते हैं, इक्वल टू करते हैं, और हर बार वो 1 नहीं 2 ऐड करेगा. कंट्रोल एस, कंट्रोल F9. मैंने 12 दिया और मैंने इसकी वैल्यू को 120 तक कर दिया. सो अभी देख रहे हो आप आउटपुट, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है. ओके, अभी हम 12 कर देते हैं और यहाँ पे एंड वैल्यू हम 20 कर देते हैं. 12, 14, 16, 18, 20. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप. नाउ हम आते हैं डू वाइल पे. सेम ही कोड को हम डू वाइल में चेंज कर देते हैं. यहाँ पे हम डू कर देते हैं और ये जो है आपका, इसको यहाँ से हटा देते हैं. बहुत सिंपल है सिंटेक्स. यहाँ पे आके आप वाइल लिख देंगे और कंडीशन आपकी क्या है, स्टार्ट लेस देन और इक्वल भी लगाना है तो इक्वल लगा देंगे और एंड सिंबल. दिस इज कंट्रोल F9. अभी हम कंट्रोल F9 करेंगे. इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 11 रखा है और ये मैंने 17 रख दिया है. सो आपका ये प्रिंट हो गया क्योंकि हमने 2 को ऐड कराया है. अगर आप 2 को ऐड 2 का टेबल प्रिंट कराते, चलो कंट्रोल F9, स्टार्टिंग 2 से कर देते हैं और लास्टिंग 20 से कर देते हैं. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 6 12, 7 14, and 8 18, 19, 9 18, and 10 20. This is the table using do while loop. I hope आपको समझ में आया है. और do you have any questions? Now you will say, okay, convert this as a for loop also. Yes, we will convert. I'm going to write a more program, but इसी प्रोग्राम को भी कन्वर्ट कराने का अपना एक तरीका है. स्टार्ट करना है आपको. ओके, सो ये आपने क्या लिखा, इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी, स्टार्टिंग वैल्यू होगी. यहाँ पे कंडीशन जो आपने लिखा है, स्टार्ट लेस देन इज इक्वल्स टू एंड, और यहाँ पे स्टार्ट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आप, या फिर स्टार्ट +1 भी लिख सकते हैं. चॉइस इज योर्स. मेनली लोग ना ये +1 ऐसे नहीं लिखते हैं, प्लस प्लस ही लिख देते हैं. प्लस प्लस का मतलब भी वही होता है. इसको कमेंट कर देते हैं. ये लाइन हमने वहाँ पे एड यूज की. कंट्रोल F9 करेंगे. ये गलत करा. ओके, अब आप बोलेंगे मैडम आपने वो क्यों हटाया था, वो भी करना है. वैसे भी कर सकते हैं, बस मिस्टेक क्या थी कि हमने वहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लिया था. दिस इज फॉर लूप. सो इस कॉन्सेप्ट में लूपिंग कॉन्सेप्ट फिनिश. नाउ वी विल सी मोर प्रोग्राम अबाउट द loop concept. Okay, and we are going to end the session here. Hope you like the session. आपको समझ में आया है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, you can mention in a comment. And if you like my video, the way I'm teaching you, kindly subscribe my channel. Thank you so much.